Hello everyone. So welcome to our first lecture for standard 6 general science. Okay. Now we know the first chapter is natural resources. Okay. So in this lecture we are going to see an introduction to this chapter, that is natural resources, air, water and land. Okay. Now before going to the chapter, let us see what is science. साइंस क्या है आप सबको मालूम होगा. सो दिस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज in which we study everything. Okay, we observe, we try to understand what is the reason behind the processes which are taking place in the surrounding or everywhere. Okay, we try to study everything which is there in the entire universe under this branch, and it is very vast branch. Okay, science. So now your subject is general science, so whatever we are going to study in this class, okay, in 6th standard, whatever we will study, it is going to be the basic or base of the higher knowledge. Okay, so let us start with the first chapter, that is natural resources. Now my dear students, you have seen mountains, you have seen river, you have seen land. Okay, various forms of land. Okay, plains, plateaus, valleys, these are nothing but a part of the earth. Okay, air है, water है, land है. Okay, ये जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी चीज है, ये सब क्या है, अर्थ के पार्ट है, अर्थ का पार्ट है. अर्थ जो है ये एयर, वाटर और लैंड से बना है. ओके, now we human beings use all these parts of earth for our own welfare. We use water. हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं. ओके, दिस वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी स्टे ऑन लैंड. ओके, हम लोग रहते कहाँ पे, जमीन पर रहते हैं. ओके, एयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज वी इनहेल ऑक्सीजन. सो ये जितने भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है, जो है पार्ट, अर्थ के पार्ट है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने बेनिफिट के लिए. ओके, टू फॉर आवर ओन सर्वाइवल. हम इन सब चीजों के बिना जिंदा नहीं रह सकते. ओके, देखो आप लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स भी देखे रहेंगे, बर्ड्स भी देखे रहेंगे. तो जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, वो एयर में लोकोमोट करते हैं, एयर में, हवा में उड़ते हैं. ओके, then these birds are living on trees. Okay, trees are growing on land. Okay, we are getting food from the trees. Okay, then we are drinking water, then we are catching fish from these water bodies. Then you will see that we use vehicles for locomotion, to transfer, to travel from one place to another. We use vehicles on land. Okay, they are then water vehicles, for example boat, ship. Okay, so this we use for traveling in water. Okay, then there is aeroplane for traveling in air. So we are using these natural resources for our own benefit and survival. Okay, now this earth, our planet earth, is made up of air, water and land. Okay, air is nothing but एटमॉस्फेयर. एयर को क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर. ओके, इन साइंस एयर इज नथिंग बट एटमॉस्फेयर. वाटर इज नथिंग बट हाइड्रोस्फीयर. okay, and land is nothing but lithosphere. Okay, remember that atmosphere is for air, hydrosphere is nothing but water, and lithosphere is nothing but the land which is present on the earth. Now we animals, human beings, all the species which are present on earth, okay, this all species, all the living organisms, okay, and atmosphere, hydrosphere and lithosphere, this all are combinedly called as biosphere. Okay,
all the animals, plants, living things, and atmosphere, hydrosphere and lithosphere. All these four are combinedly called as biosphere. Okay, now this air, water and land are present on earth naturally. Okay, ना ही हम इंसानों ने हवा को तैयार किया है, ना ही पानी को, ना ही जमीन को, ये सब क्या है, नेचुरली प्रेजेंट है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। रिसोर्सेज मतलब क्या, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर आवर ओन सस्टेनिंग सर्वाइवल। ओके, सो ये तीनों जो भी है, एयर, वाटर और लैंड, ये क्या है हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज है। दिस आर एन इम्पॉर्टेंट factor for us. Okay, now one by one we are going to study about atmosphere, hydrosphere and lithosphere. So in this particular lecture we will aim to cover this atmosphere. Okay, what is atmosphere? As we know, atmosphere, that is nothing but air present on the earth. Okay, so जो atmosphere मतलब air, इसके टोटल 5 लेयर्स है। there are 5 layers of atmosphere. Okay, what are the layers of air? Number 1 is troposphere. Okay, number 2 it is stratosphere. Number 3 it is mesosphere. Fourth layer is ionosphere, and the fifth layer is exosphere. Okay, so these are the 5 layers of air. ये जो एयर है हमारा, एटमॉस्फेयर जो है वो 5 लेयर्स से बना है। ओके, सरफेस से अगर हम लोग सर्टेन हाइट तक कंसीडर करेंगे, सपोज 400 किलोमीटर्स कंसीडर करो, तो ये हमारा क्या है, ट्रोपोस्फियर है। उसके बाद क्या आता है, उस और ऊपर अगर हम लोग जाएंगे एयर में, सरफेस से और हायर एल्टीट्यूड को अचीव करेंगे तो फिर स्ट्रेटोस्फियर आएगा। उसके बाद फिर मेसोस्फियर आता है, आइनोस्फियर, और फिर लास्ट लेयर क्या है एटमॉस्फेयर का, एक्सोस्फियर है। ओके, सो वन बाय वन लेयर है ये। पहले ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर। और ये जो एटमॉस्फियर है ये 5 लेयर्स में प्रेजेंट है। ओके, ट्रोपोस्फियर जो है वो एटमॉस्फियर का टोटल 80%, कितना, 80% जो पूरा है एटमॉस्फेयर हमारा, वो ट्रोपोस्फियर के अंदर आता है। ओके, एयर जितना भी प्रेजेंट है वो 80% एयर ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में 19% एयर प्रेजेंट है। ओके, मेसोस्फियर में दोनों मिलाकर के, मेसोस्फियर और आयनोस्फियर मिलाकर के 1% एयर प्रेजेंट है। और एक्सोस्फियर जो लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसमें एयर दैट इज गैसेस आर एब्सेंट। ओके, इसके ऊपर एक्सोस्फियर के आगे और एक्सोस्फियर तक एयर क्या है, एब्सेंट है, 0%। ओके, अब ट्रोपोस्फियर में 80% एटमॉस्फेयर का पार्ट है, एयर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रोपोस्फियर क्या होगा, डेंस होगा। ओके, मतलब बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में भी 19% है, तो है थोड़ा सा गैस प्रेजेंट। लेकिन मेसोस्फियर और आइनोस्फियर में जो एयर है वो पूरा डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब क्या, बहुत ही कम अमाउंट में आपको देखने मिलेगा, और डेंसिटी क्या है इसकी, बहुत ही कम है। ओके, तो मेसोस्फियर और आइनोस्फियर में जो एयर प्रेजेंट है उसकी डेंसिटी बहुत ही कम है। डेंसिटी कम है मतलब क्या है, सपोज एयर का एक पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ पर। ओके, सो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है दोनों पार्टिकल्स के बीच में, डाइल्यूटनेस है बहुत ज़्यादा। सो ये क्या है हमारा, मेसोस्फियर और आइनोस्फियर में सिर्फ और सिर्फ
1% एयर प्रेजेंट है, इसलिए उसका जो डाइल्यूटनेस है वो आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। ओके, और एग्जॉस्फेयर में एयर क्या है, एब्सेंट है। सो ये 5 लेयर्स है एटमॉस्फेयर के, ये आपको मालूम होना चाहिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एयर, सो ऑब्वियसली इट हैव सर्टेन गैसेस, इट इज मेड अप ऑफ सेवरल गैसेस। एयर क्या है, गैसेस से बना हुआ है। सो कौन कौन से गैसेस से एयर बना हुआ है, कौन कौन से गैसेस ज़्यादा है एयर में प्रेजेंट। सो एयर जो है, इन एयर देयर आर सेवरल गैसेस, दोज आर नाइट्रोजन, okay, then oxygen is there, then we know argon is there, then carbon dioxide is there, okay, then we have other gases which are present in other gases और constituent, other gases या फिर other constituents हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। constituents मतलब क्या, अब एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है कि नहीं, सो ये कंस्टिट्यूएंट्स मतलब क्या है, वाटर वेपर और क्या है ये, डस्ट पार्टिकल्स। यू नो दैट डस्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। सो ये सब चीजों, सब जो कंस्टिट्यूएंट्स है हम लोग को एयर में देखने मिलते हैं। नाउ एयर इज मेड अप ऑफ 78% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है एयर में, सबसे ज्यादा है, विच इज 78%, एंड 21% क्या है हमारा, 21% क्या है हमारा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, 78 प्लस 21 कितना हो गया, 99%। सो मेजर जो प्रोपोर्शन है एयर का, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने ले लिया है। ओके, वो है 99%, दैट इज 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। ओके, फिर बचे आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, इट इज 0.03%, आर्गन कितना है 0.09%। ओके, और जो अदर कंस्टिट्यूएंट्स है वो 0.07% के आसपास है। ओके, सो दिस इज द proportion of gases present in air. ओके, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा आपको याद रखना है 78%, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन क्या है 0.09%, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है 0.03%। हमें ये परसेंटेज क्या करना है, याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ओके, 78% नाइट्रोजन है एयर में और 21% क्या है, ऑक्सीजन है। सो आपको याद क्या रखना है इस लेक्चर में से, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आपको, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या, दिस एयर वाटर एंड लैंड। ओके, सो अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय एयर वाटर एंड लैंड एंड दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए तीनों भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये तीनों भी क्या हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। ओके, फिर हम लोग एटमॉस्फेयर में गए। एटमॉस्फेयर का टोटल 5 लेयर्स है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर। ओके, and then we have to remember the gases which are present in air. Okay, and we have to remember the proportion at which those gases are present. So this is it for the today's lecture. In the next lecture we are going to study about the uses of these gases, and we will also see the about air pollution. Now if there is air, we human beings have polluted this air. Okay, and how we have polluted the air and how we can stop this pollution, we will study in the next lecture. Okay, thank you.